So very good morning. Today we are here with the chapter Indian Constitution. You are very much aware of the facts that are related to the Constitution. That the Constitution of our country it was enforced on 26th January 1950. Though it was ready by November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. The Constitution, we also know that it's a sort of law book, right? It is that document which guides the government how to run the country. It also acts as the guardian of protecting the fundamental rights of the people, right? It also tells the rights and duties to the citizens. It also provides the directive principles for the government. It also takes care of all the interests of the people. And when the Constitution was being made, it was made sure that no political party, no ruling government can change the basic structure of the Constitution. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि इसकी जरूरत क्यों थी, why it was needed. If we go to the chapter which we had done previously about the parliament, वहां पर आपका एक क्वेश्चन आया था, why do we need the parliament? Why we wanted to have an organization which would rule in favor of the people, on behalf of the people. So उसमें हमने ये पढ़ा था कि because under the British, the people were afraid, they were not having the freedom to speak, they did not have the rights, they were bound to rather to follow the British, whatever they did, whatever they said. And that environment in which the people were living before the independence, that was very, very unhealthy type of environment for the people, right? So, जब ये सारा एक पैटर्न जो था एक ब्रिटिशर्स का चल रहा था, तो जब उस समय एक ऐसा एक मूवमेंट आया, when it was decided कि yes, now the Britishers has to leave the country. Independence हमारी जो थी country की, that was inevitable now. So now the leaders, क्योंकि उस समय ऐसा वोटिंग वाला या कुछ इलेक्शंस वाला सिस्टम तो होता नहीं था, तो हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने देखते ही डिसाइड किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी मेड. अब ये लीडर्स जो थे वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर उन्होंने देखा हुआ था कि हाउ द ब्रिटिशर्स आर रनिंग द कंट्री, हाउ दे आर कंट्रोलिंग, उनका सिस्टम कैसा है. इन्होंने उस सिस्टम को फॉलो किया. वो बहुत ज्यादा अवेयर थे इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के अंडर या अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री को रूल कर रहे, right? So they felt that yes, the constitution is to be there. Why? Because after independence अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो रूल करने लग जाती है और ऐसा उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से रूल कर रही है, तो quite possible that a larger section of the society may get unrepresented. Their interest may not be taken care of by the ruling government. Many people may not be able to express themselves, right? जो माइनॉरिटी में है उनके इंटरेस्ट नहीं सुने जाएंगे, एक क्योसनेस जो है वो कंट्री में आ जाएगी, and quite possible that the country may get divided on these ethnic basis. तो हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, they were having a far sightedness जिसको हम हिंदी में कहते हैं दूरदर्शिता.
मीन्स वो बहुत दूर तक देख पा रहे थे कि अगर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, if we will not provide such type of law book or rule book to the government, to the people, there will be a situation where the people will get divided further, or a sort of civil war may be there in the country. और ये तब की बात है जब इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी हमें। सो उस समय में जो लीडर्स थे वो इतनी दूर तक सोच पा रहे थे, तो उनका एक ये मानना था कि जब हम ये रूल बुक बनाने लगेंगे, देन द एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी should send their representative in the process of constitution making, ताकि जब रूल्स बनाए जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि जब रूल बनाते हुए एक रूल ऐसा बन जाए जो एक ग्रुप के लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दैट मे बी हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ द पीपल। सो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, एंड दैट्स द रीजन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें जो मेंबर्स थे वो बहुत सारे मेंबर्स थे, एंड दे ऑल वर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो पहले हमारे पास अब ये चीज होनी चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों, रूल बुक की जरूरत ही क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ है कंट्री, इलेक्शंस हुए हैं, गवर्नमेंट है, देश को चला रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की क्या जरूरत। देयर आर मेनी रीजंस, all the democratic countries they have their constitutions, right? So एक statement आती है कि all the democratic countries are likely to have the constitution, but all the countries having the constitution doesn't mean that they are democratic, right? हर डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक होगी। कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, आप भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आपके घर में कोई रूल बुक बना लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। लॉ बुक है, कोई रूल बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। सो एनी हाउ इट सर्व्स मेनी ऑफ द पर्पसेस। क्या जरूरत है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की? इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स that form the kind of country that we citizens aspire to live in. ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी एक आइडियलिस्टिक टाइप ऑफ कंट्री प्रेजेंट करता है जो हम एज अ सिटीजन हमेशा से ही चाहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी। जब आप इसको सुनोगे ना, राइट टू इक्वालिटी, बहुत मजा आता है सुन के, माय गॉड, एवरीवन इज इक्वल इन द सोसाइटी, नो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। तो प्रैक्टिकली नहीं भी है, बट एक आइडियलिस्टिक हमारे पास एक सिचुएशन है कि यस दीज आर द फीचर्स। सो ऐसी तो कंट्री होनी चाहिए जिसमें ऑल पीपल आर इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको बराबरी का हक है एंड ऑल। तो एक आइडियलिस्टिक स्टेट जो है ये प्रेजेंट कर देती, राइट। और दूसरी बात ये होती है कि हर कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग हैं, राइट। हर एक कंट्री को तो छोड़ो, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जितनी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है इतनी किसी और कंट्री में नहीं। आवर कंट्री इज वेरी वेरी डाइवर्स, दैट वी आल्सो नो। तो ऐसी कंट्री में हर किसी कम्युनिटी का, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अपना एक व्यू पॉइंट है, राइट। किसी का व्यू किसी से नहीं मिलता। अब अगर मैं आपकी बात कर लूं कि अब आप में से कई ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, कई नहीं पसंद करते हैं, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है सुबह उठने में। अब अगर हम स्कूल का रूल ना बनाए कि भाई तुमने 7:30 स्कूल आना है, तो भाई जो तो 5 बजे उठ के तैयार हो जाता है वो तो 6 बजे स्कूल आ जाएगा, जिसकी नींद ही नहीं खुलती वो 10 बजे आ रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं होता ना, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के व्यूज हैं, बट एक ऐसा रूल तो चाहिए ना जिसे सब मानेंगे, तभी तो एक डिसिप्लिन आएगा, तभी तो एक चीज ढंग से रन करेगी, अदरवाइज तो ऑलवेज अ स्टेट ऑफ क्योसनेस विल बी देयर, राइट। और हर पॉइंट पे हर बंदा जो है वो एग्री नहीं कर पाता है, तो ऐसे में ही देयर वाज अ नीड ऑफ द टू हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्संस कैन एग्री अपॉन, राइट। अब घर में जब समर वेकेशंस होती हैं, होने लगती हैं, तो क्या होता है कि
किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, राइट। घर में जब डिस्कशन होता है कि चल घूमने जाना है, अगर 4 बंदे हैं ना, चारों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। सो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर डिसाइड किया जाता है भी जाना तो एक ही प्लेस पर है। सो चेकर ये होता है कि हमें फिर ऐसी रूल्स की जरूरत है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स की जरूरत है जिसपे हर कोई एग्री कर जाए। अगर ये नहीं होगा तो हर किसी का व्यू पॉइंट है, और हर किसी का व्यू पॉइंट मानना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो कंट्री है, एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। और नॉर्मली जो भी कंट्री, चाहे न्यूली डेमोक्रेटिक है या पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हर किसी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यू नो कई कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले कभी डेमोक्रेटिक रही, फिर उनमें कोई रिवोल्ट हो गया, फिर वो डिक्टेटरशिप आ गई, मिलिट्री रूल आ गया, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी के लोगों को लड़ना पड़ा, फिर जाके डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। हमारी कंट्री जो है, दैट इज वी कैन से फॉर्चुनेट इनफ कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तब से लेकर आज तक हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक ही है। द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैज नेवर बीन ओवरथ्रोन बाय एनीवन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 1947 के बाद से ऐसा कोई रिवोल्ट नहीं हुआ जिससे कि हमारी कंट्री का जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर कोई और गवर्नमेंट बन गई। वेयर एज कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी कंट्री में दोबारा डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, राइट। इसके अलावा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है हमारे पास। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज अ डेमोक्रेटिक वन, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट वी हैव अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और इसमें ये सारी चीजें बताई जाती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बनी कैसे है, कैसे बनेगी। लाइक हमारी जो है डेमोक्रेटिक है, तो वेयर द पीपल दे इलेक्ट their government, their leaders in turn they transform the government। तो ये जो leaders है हमारे, they exercise the responsibilities or the powers on our behalf। हमारे बिहाफ पर ये जितने भी लीडर्स हैं ये पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, और यू कैन से दे यूज और दे रूल द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, राइट। अब अगर ये हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं, नो डाउट, बट पॉसिबिलिटी हमेशा एक रहती है कि दीज लीडर्स में मिसयूज देयर पावर्स, वो अपनी पावर्स जो है वो मिसयूज कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर कर सकते हैं तो लोग क्या कर पाएंगे, भी उन्होंने तो चुन लिया एक बार, हमने तो इलेक्ट कर लिए, अब 5 साल तक तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मिसयूज करें चाहे वो ढंग से रूल करें। तो इट्स नॉट देयर। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर भी प्रोविजन रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट के पास गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने कंट्री रन करनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है चीजें, आई मीन दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे हमारे कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो हमारे कोर्ट्स भी जजमेंट नहीं देते। एवरी वर्किंग इज देयर विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Everything is there within the limit set by the constitution, right। इसके अलावा as mentioned the constitution lays down rules that guard against the misuse of power by our political leaders, right। अब अगर आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, राइट, चलिए हम कह देते हैं, आप क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट में भी आप लोग जब खेलते हैं तो उसमें एक अंपायर का एक रोल होता है, राइट। अंपायर वो होता है जिसको पूरे रूल्स की नॉलेज होती है। सपोज ये अंपायर ही ना हो, फिर आप लोग गेम कैसे खेलेंगे। जिसके पास बैट है, जो बैटिंग कर रहा है, वो सुबह से शाम तक बैटिंग ही करता रहेगा, वो कभी आउट ही नहीं होगा अगर अंपायर ना हो तो, राइट। सो अगर रूल बुक ना हो तो ये मैच जो है ये तो बैट्समैन कभी हारेगा ही नहीं,
राइट। प्रोविजंस कितने अच्छे दिए हुए हैं इस मैच में भी कि एक तो अंपायर होता है, राइट। अंपायर जो है, अगर आप आउट हो गए, उसने डिसीजन दे दिया कि यस यू आर आउट। उसके बाद आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग हो गई है कि फर्दर इसमें ऐड किया गया थर्ड एम्पायर भी। इन केस कोई डाउट रह जाए तो वी हैव द थर्ड एम्पायर ऑल्सो। तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि एज सच कोई चीटिंग हो जाए, कोई पिलफेज हो जाए इस गेम में। नाउ यू सपोज हैड these umpire, third umpire, and no rules had been there for the match. Chaotic, right? And as said कि कोई रूल्स नहीं है तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, इक्वालिटी ही नहीं रहेगी। बराबरी कहाँ रहेगी? यहाँ तो एक बंदा जिसके पास बैट है वही बैटिंग करी जा रहा है। इट मीन्स कि जो लीडर बन गया है वही अपनी मर्जी से रूल करी जा रहा है, अगर एज सच कोई सेट ऑफ रूल्स ना हो तो, राइट। सो ये जो है सेट ऑफ रूल्स दैट आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड। एक और रीजन, क्वाइट पॉसिबल कि सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट। स्ट्रांग, आई एम नॉट सेइंग कि सारे पहलवान ही हैं, ऐसी बात नहीं कर रही हूं मैं, कि कोई मेजोरिटी होती है या कोई डोमिनेंट ग्रुप होता है। आपके घर में क्या होता है कि जब, अगर मैं आपकी सिबलिंग्स की बात करूं ना, तो आप भाई बहन है, तो अगर दो भाई बहन हो, आप तीन हो, तो उसमें एक ऐसा जरूर होगा जो पूरा रोब डालता है तुम लोगों के ऊपर, ठीक है। वो पूरा रोब तुम लोगों के ऊपर डालेगा। ऐसे में क्या है कि क्वाइट पॉसिबल कि वो अपनी मर्जी तुम्हारे ऊपर चला लेगा, ठीक है ना। अपनी मर्जी चला लेगा, तुमसे अपने काम करवा लेगा। एंड आई थिंक ये सारे घरों में ऐसा ही होता होगा, बच्चों के साथ अपने काम करवा लिए, डरा धमका के जैसे भी कर लिया, राइट। बट अब यहाँ पे अब आपके पेरेंट्स का रोल होता है कि दे हैव टू मेक इट श्योर दैट कि जो घर में ऐसा कोई डोमिनेंट है वो छोटे भाई बहनों को परेशान ना करे किसी भी रीजन से। ऐसा ही सोसाइटी में भी होता है कि कोई ना कोई डोमिनेंट ग्रुप होता है। अगर ये रूल बुक ना हो, अगर ये सेट ऑफ रूल्स ना हो, तो क्या होगा? ये जो डोमिनेंट ग्रुप है, ये लेस पावर या जो कमजोर ग्रुप है हमारी कंट्री में, सोसाइटी में, उसको डोमिनेट करेगा। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं तो ये जो आपका डोमिनेंट या एक जो रोब मारने वाला भाई या बहन होता है, उस समय पूरा फायदा उठाता है आपका, राइट। चाहे वो आपके काम करवा ले आपसे, चाहे अपना होमवर्क करवा ले, या चाहे जो भी मर्जी आपसे करवा ले, और जैसे मम्मी पापा घर आते हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उस समय इसको डर है अपने इस रूल्स का कि अब इनको डांट पड़ सकती है, राइट। सो यहाँ पे एकदम से आप डिफरेंस दे सकते हैं कि कहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, कहां पर नहीं है। जब जहां पर रिस्ट्रिक्शन है तो वहां पर बड़े डिस्टेंस रह रहे हैं, जहां नहीं है तो अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इट एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल, राइट। सो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, जिससे कि एक इक्वालिटी जो है, वी कैन एंश्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, राइट। इसका मतलब है, ये साउंड स्ट्रेंज कर रहा है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। What is meant is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this, right। कई बार क्या होता है कि हमें जैसे फ्री राइट ऑफ फ्रीडम दे दिया जी। अब फ्रीडम दे दिया, अब इसका मतलब कि हम कुछ भी करते रहेंगे, हम कुछ भी बोलते रहेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि हम अपने कंट्री के अगेंस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। सो ऐसे कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। आप लोग
से आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ ऐसे क्योटिक कंडीशंस हो गई थी कंट्री में, नॉट लास्ट लास्ट ईयर, 5-6 साल पहले की बात है। तो उस समय क्या किया गया था, ऐसा कुछ था कि सारे इंटरनेट जो सर्विसेज है वो बंद कर दी गई थी। हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेस है, लेकिन जब वो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो वो हमसे ले ली जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, राइट। वो इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद कर दी गई? बिकॉज पीपल वर स्प्रेडिंग द रूमर्स, और रूमर्स जो है दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। सो दिस इज द से दिस इज द थिंग जिसके कारण हम लोग जो है हमें आई मीन से द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें गाइड करता है, राइट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसे डिसीजंस ले लेती है दैट में गो अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो उससे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आई मीन दैट सेव्स और प्रोटेक्ट्स द पीपल। प्लस दिस कॉन्स्टिट्यूशन it also protects our fundamental rights and provides us fundamental rights and protects our fundamental rights also. ये बात अलग है कि अगर कंट्री में कोई ऐसा इमरजेंसी लग जाए तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and rights to constitutional remedies. Right to equality क्या है? That all people are equal before the law. They are equally protected by the law irrespective of their caste, creed, color, gender, right? Then right to freedom. Right to freedom जो है ना, इसमें और 6 rights included होते हैं। Right to freedom of speech and expression, right to form associations, right to move freely and reside in any part of the country, right? Right to practice any profession. Then you can even open the educational institutions, right? So ऐसे कुछ rights हैं which are there under the right to freedom. Then is right against exploitation. A constitution prohibits trafficking. ट्रैफिकिंग क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ द ह्यूमन, स्पेशली women and children for immoral purposes. Then forced labor and children that are working under the 14 years of age. ये जो है right against exploitation के अंडर आता है, right? Then is right to freedom of religion. आप किसी भी religion को follow कर सकते हैं, and you have the right to practice, profess and propagate the religion. कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है वो शुरू कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट मींस कि अगर आपके राइट को कोई वायलेट करता है देन यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट, राइट? सो दीज आर द 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इसके और जो फीचर्स है वो हम लोग कल करें। टुमारोज क्लास वी विल डू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।